Hi everyone, and welcome back to Competitive Willpower. We'll start today a financial editorial, and before that, we have a motivational quote that is: "Don't dream of winning. Don't dream of winning. Train for it." Right? You should not dream for winning, and instead, you should train yourself for it. Okay, so then only you'll succeed. So let's start with the financial editorial. And today's editorial we have party ends. It's the heading party ends. Subheading is higher risk provisioning should not be permanent. It's talking about higher risk provisioning and it should not be permanent. If you have a higher risk in anyway, any place, any institute, any organization, it should not be permanent, it should be temporary. Okay, because higher risk leads to lot of damage. Okay, so let's start. the reserve bank of india the Reserve Bank of India has flagged the risk building up in retail loan portfolio of banks and NBFC on various occasions. The latest being during October monetary policy announcement when Governor Shaktikanta Das ji asked lenders to strengthen internal checks to establish safeguard. Right. So Reserve Bank of India गवर्नर जो है शक्तिकांत दास उन्होंने क्या किया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरनल क्या स्ट्रेंथन करना है स्ट्रॉन्ग करना है इंटरनल चेक्स टू एस्टैब्लिश सेफगार्ड के लिए इंटरनल जो चेक्स किया जाता है उसको क्योंकि जो रिस्क बिल्डिंग इन रिटेल लोन जो प्रोवाइड किया जाता है बाय बैंक्स एंड एनबीएफसी उसमें हमेशा रिस्क रहता है वेदर द पार्टी विल बी रिटर्निंग लोन एंड इंटरेस्ट एट द timely period or not, and whether the person loan taken person will not become a bad debt, so there will be always a risk. So अक्टूबर में क्या हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था उसमें अनाउंस किया गया था शक्तिकांत दास द्वारा कि ये जो रिस्क होता है लोन्स में उसको टाइमली आप इंटरनल चेक्स करते रहना whether the party is paying their interest at on in time or not. Right. Next, Thursday move by the central bank to increase risk weights on certain consumer loans and on bank lending to NBFCs appears primarily aimed at reining the growth in unsecured consumption loans. तो थर्सडे को सेंट्रल बैंक द्वारा दैट इज द आरबीआई ऐसा मूव लिया गया टू इंक्रीज द रिस्क वेट्स ऑन सर्टेन कंज्यूमर लोन्स कुछ कंज्यूमर लोन्स है जो बैंक्स लेंड करता है एंड एनबीएफसी अपीयर्स प्राइमरली एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो क्या करते हैं प्राइमरली एम करते हैं वैसे कुछ कंज्यूमर्स को उसमें क्या करा है रिस्क वेट जो होता है उसको इंक्रीज करने का यहाँ पे थर्सडे को ऐसा सेंट्रल बैंक का मूव है और ऐसा एम करेगा दैट द ग्रोथ इन अनसिक्योर्ड कंज्यूमशन लोन जो लोन्स है वो लोन कंजम्पशन राइट लोन कंजम्पशन मतलब जो रिस्क होता है अनसिक्योर्ड जो सिक्योर नहीं है ठीक है जो सिक्योर नहीं है जो थोड़ा तो सही तरीके से बोला जाए तो कुछ लोन्स प्रोवाइड किया जाता है ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर अप टू डेट ओके और उनको लोन्स प्रोवाइड किया था बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे कुछ ये रहता है डाउटफुल रहता है तो वो अनसिक्योर्ड रहता है सिक्योर नहीं रहता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन जस्ट बिकम बैड डेट ओके सो दोज आर अनसिक्योर्ड तो उसमें रिस्क वेट है उसको इंक्रीज करने का यहाँ पे बात किया गया है नाउ The credit growth in recent months has been skewed toward
retail borrowers and services. The एक डायरेक्शन skewed मतलब means a direction. So the credit growth in recent month में जो credit growth है has been skewed toward retail borrowers and services. So recent month में जो credit growth है it's toward the direction in the favor of retail जो borrowers होते हैं and जो सर्विसेज जो हैं उन लोग की तरफ में है क्रेडिट ग्रोथ. क्रेडिट मीन्स लोन, टॉकिंग अबाउट उधार. सो and the credit to industries grew just 6% in August 2023, and toward the industry it's just 6% in August 2023, with all big industries excluding textile and basic metals witnessing slow credit growth. Okay, so all big industries like textile, basic metals are witnessing a credit growth that is very slow, and the credit growth in the favor of borrowers and services, right? On the other hand, retail loans grew 18% in this period, with credit card loans registering a scorching 30%. राइट. ऑन द अदर हैंड रिटेल लोन्स होते हैं वो ग्रीव किए हैं 18% से इन दिस पीरियड. किस पीरियड का बात हो रहा है? ये अगस्त 2023 का जो क्वार्टर था उस पीरियड में. विथ क्रेडिट कार्ड से जो लोन अवेल किया जाता है रजिस्टरिंग स्कॉर्चिंग ऑफ 30% ग्रोथ. ठीक है, तो ये जो हाइक किया है 30% ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है. राइट. नाउ पर्सनल लोन्स एट 48 लाख करोड़ अकाउंट्स फॉर 31% ऑफ टोटल बैंक क्रेडिट नाउ. सो पर्सनल लोन्स एट ₹48 लाख, जो पर्सनल पर्पस के लिए लिया जाता है. राइट. It's 48 lakh. Different kind of loans are available. कार लोन्स हुआ, होम लोन्स हुआ, हेल्थ के लिए भी हुआ, एजुकेशनल लोन हुआ, right? And there are also some personal for which actually it's not really mentioned for what purpose you are taking. Okay, for personal use. So पर्सनल लोन में आता है जो भी आपका निजी कारण रहता है. बट over here it's personal loan at ₹48 lakh crore account for 31% of the total bank credit. Now of this the unsecured position accounts for roughly 15 lakh crore. और unsecured जो है, secured जो नहीं है, it's 15 lakh crore और around 1/3. ठीक है, so it's 1/3. And competition in retail lending is leading to sharp practices including evergreening of the retail loan book. So competition in retail lending. Okay, retail lending क्या है? There are banks and NBFC that they provide loans, and उसके बाद में जो रिटेल जो होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, like those are for the like sahukars and all the person, they provide loans in a higher rate, right? Or sometime also in the lower rate as compared to the banks, and they also don't ask for any security, any paper. So the competition in retail lending is leading to a sharp practices including evergreening of the retail loan book. Okay, evergreening of the retail. So there are huge competition in this lending, credit lending. Or heeding the stress faced by these borrowers due to the fast-paced interest rate increase since last May. Okay, since last May there is an increase in the interest rate. Okay, we can see. or hiding the stress faced by these borrowers, जो borrowers को जो लोन लेते हैं, ठीक है, they take loan, उनका स्ट्रेस एक तरह से बढ़ रहा है. why because due to
फास्ट पेस्ड इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज इन सिंस लास्ट में से वो जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है, इसलिए जो लोन लेते हैं उनको इंटरेस्ट रेट अब हायर पे करना पड़ता है. Now the central bank is therefore justified in trying to arrest risky loans by increasing the cost of borrowing. So the central bank is therefore justified. क्या कर रहा है, एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है, मेकिंग अ बैलेंस. ओके, रिस्की जो लोन होते हैं, ओके, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. ओके, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को इंक्रीज कर दे रहा है. अगर आप लोन ले रहे हैं तो जो इनिशियल जो पेमेंट होता है इट्स दे आर इंक्रीजिंग इट, एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट आर नाउ raised by the central bank. So they are making a justifiable if they the loans which are very risky like educational loan, okay, and all other loans. So now if the borrowers will fail to pay, but at the early stage they are asked to pay a bit higher. Okay, so that's why central bank is making a justified. Okay, एक balance बने रहे, right? Now, well, the central bank is right in checking lenders from taking excessive risk to chase profits. It needs to be mindful about the negative impact of this move on consumption. Central bank is right. Central bank को बोला जा रहा है they are right in checking lenders को चेक करने में और सही है from taking excessive risk to chase profit. उनका एक्सेसिव रिस्क टू चेज प्रॉफिट को चेज करने के लिए, टू गेट मोर प्रॉफिट. ओके, दे टेक दे डू वट एवर द सर्टेन देयर एक्टिविटीज. ओके, बट यहाँ पे बोला जा रहा है उनको सभी चीज को जो लेंडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लोन, तो उन सभी एक तरह से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर रहे हैं जो लेंडर्स हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट हायर प्रॉफिट, राइट. हायर इंटरेस्ट रेट रहेगा, बोरोवर्स से चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट विल बी ग्रेट. ओके, वाइल द सेंट्रल बैंक इज राइट, और जो सेंट्रल बैंक चेक कर रहा है लेंडर्स को, चेकिंग लेंडर्स इज रियली गुड. Why? It needs to be mindful about the negative impact of this move on consumption. और इसका क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो कंजम्पशन पे, लाइक द borrowers they take loan and pay higher rate of interest, ठीक है, और समटाइम लोअर रेट. सो इसका इम्पैक्ट जो कंजम्पशन पे ना हो. ओके, कंजम्पशन मीन्स इकोनॉमी पे ना हो. ओके, द एवरी सिंगल इट्स सर्कुलेटेड. ओके, जो लोन इकोनॉमी में सब इस तरफ होते हैं सेवर्स और इस तरफ होते हैं इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्ट और बीच में होता है बैंक. ओके, बैंक क्या करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है सेवर्स से, जो सेविंग करते हैं मिडिल क्लास पीपल उससे, एंड द इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन देयर प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड इन देयर प्रोडक्शन. सो इस तरीके से अगर ये हायर रेट पे भी ले रहे हैं, राइट, बैंक इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, एंड सेविंग्स जो सेवर्स जो होते हैं मिडिल क्लास पीपल, दे आर स्टिल गेटिंग द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इसका बैड इम्पेक्ट ना पड़े इकोनॉमी पे, दैट्स व्हाट central bank wants. So they are checking the lenders, the loan providers, and that's somewhere right. यही बोला गया. Now, with private investment showing no signs of revival, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, इम्प्रूवमेंट का कोई साइन भी नहीं है. कर्बिंग कंजम्पशन बाय इंक्रीजिंग फाइनेंशियल कॉस्ट मे नॉट बी कंडक्टिव फॉर ग्रोथ. अब curbing consumption by increasing financial cost, if you gonna increase the financial cost, may not be conducive for growth. और ये ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा. क्यों?
क्योंकि आप जो कंजम्पशन है उसको रोक रहे हो, कम कर रहे हैं। कर मतलब रोक लगाना, ठीक है। सो इट्स अ वर्ब। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का साइन नहीं है, क्योंकि वो कंजम्पशन में एक तरह से रोक लगा रहे हैं, और फाइनेंसिंग जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। सो जो ग्रोथ है वो कहीं पे मे नॉट बी कंड्यूसिव, उतना नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। द इंक्रीज इन रिस्क वेट शुड देयरफॉर बी रिव्यूड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो इंक्रीज इन रिस्क वेट, रिस्क का जो वेट है वो कितना इंक्रीज किया है उसको टाइमली फ्रीक्वेंटली चेक, रिव्यू एंड चेक करना जरूरी है, इसलिए, ठीक है, ताकि आपका ग्रोथ तो सही तरीके से हो एट द एंड, वो जरूरी है। द इंक्रीज इन रिस्क वेट्स ऑन अनसिक्योर्ड कंजम्पशन unsecured consumer loan and credit card receivable of commercial banks and NBFC by 25%, and the increase in weights for loans extended to NBFC by scheduled commercial banks by 25% are expected to have a higher impact on NBFC than banks. Now, द इंक्रीज इन रिस्क वेट्स, जो रिस्क होता है, रिस्क वेट्स अगर इंक्रीज होता है किस पे, ऑन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर, अनसिक्योर्ड जो सिक्योर नहीं है कंज्यूमर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, मतलब क्रेडिट कार्ड से जो लोन लेते हैं, और अनसिक्योर्ड जो लोन्स होता है जो सिक्योर नहीं होता है, उससे जो रिस्क वेट्स होता है ऑन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड NBFC बाई 25%, and increase in the weight for loans extended to NBFC by scheduled banks by 25% are expected to have a higher impact on NBFC than banks. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये जो रिस्क है क्रेडिट कार्ड्स एंड अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स, वो NBFC पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द बैंक्स, जस्ट बिकॉज द बैंक्स ऑल्सो इंक्रीज करता है, ठीक है, कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो NBFC पे अपना 25% वैसा चार्ज ये करता है, राइट। सो इसलिए ये जो इम्पैक्ट होगा ऑन NBFC पे होगा, बैंक्स पे थोड़ा कम होगा। With most banks having comfortable capital, the impact of higher provisioning may not impact their lending liability. और यहाँ पे बोला गया है ज़्यादातर बैंक्स जो हैं हैविंग इन कंफर्टेबल कैपिटल, उनका जो कंफर्टेबल जोन में है, द इम्पैक्ट ऑफ हायर प्रोविजनिंग मे नॉट इम्पैक्ट, जो हायर प्रोविजनिंग होगा अगर चेक भी किया जाएगा, ठीक है, जो अनसिक्योर्ड पर्सनस जो अनसिक्योर्ड लोन्स होता है वो सबको, तो उनका जो कैपिटल इतना ह्यूज है तो उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनका लेंडिंग एबिलिटी से, राइट। सो but the move will constrain the lending capacity of NBFC since they will be impacted on the borrowing as well as lending side. So the जो मूव ये है कि चेक करने का, ठीक है, रिव्यू करने का अनसिक्योर्ड लोन्स जो है, सो क्या NBFC पे असर करेगा, क्योंकि वो जो एक तरह से दोनों साइड में है, बोरोइंग एज वेल एज लेंडिंग। वो क्या है, NBFC जो है वो बैंक से बोरो करके नॉर्मल पीपल जो है बोरोवर उसको लेंड करता है, तो इधर से वो चार्ज तो करते हैं बट इधर चार्ज इंटरेस्ट रेट पे भी करते हैं। सो इम्पैक्ट जो है NBFC पे इसलिए ज़्यादा पड़ेगा, ये यहाँ पे साफ बता दिया गया है क्यों, राइट। With both banks and NBFC likely to hike interest rate to protect their margin, दोनों अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, अपना जो कॉस्ट है मार्जिन है उसको बचाने के लिए, ठीक है। अगर आप लोन दे रहे हैं और आपको कुछ अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलेगा तो व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द नेसेसरी टू प्रोवाइडिंग द लोन। सो दैट्स व्हाई दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट एंड देयर मार्जिन। Their margin cost finance is likely to move higher, deterring borrowers of unsecured loans। और यहाँ पे क्या करेगा, unsecured loans borrowers को एक तरह से deter करेगा, मतलब उनको affect करेगा
जस्ट बिकॉज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज लाइकली टू मूव हायर। तो जो फाइनेंस करने का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करने वाला है, हायर होने वाला है। ओके, नाउ it is good that retail loans backed by collateral such as housing, vehicle, or gold loans, and essential loans such as educational loans, microfinance, and SSG loans have been kept out of the ambit of the move. So यहाँ पे बोला गया है कि it is really good that retail loans backed by collateral such as, मतलब रिटेल जो लोन है, हाउसिंग, व्हीकल, गोल्ड लोन्स, ओके, एंड एसेंशियल लोन्स सच एज एजुकेशनल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस एंड SSG लोन्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द मूव। तो ये जो मूव है, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को इंक्रीज करने का, ये सब जो लोन है, एजुकेशन लोन, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग एंड व्हीकल, ये सब को अभी तक बाहर रखा है, केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट मूव। ठीक है, तो ये जो मूव है टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ओके, एंड इंटरेस्ट रेट, उससे अभी ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। बट द एक्सपेंडिचर spurred by the personal loans and credit card loans such as travel, entertainment, and meeting medical exigencies, or to spend on family functions also contribute to economic output. तो ये क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर है ऑन पर्सनल लोन पे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, लाइक क्रेडिट कार्ड, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, मीटिंग, ओके, मेडिकल एक्सचेंजेस, ओके, ये क्या करता है, इकोनॉमिक आउटपुट को में कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक आउटपुट में ही इंक्रीज करता है। सो इट्स समवेयर इट्स गुड थिंग फॉर फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। These loans are needed by small borrowers to bridge income shortfall. The increase in risk weight should therefore not become a lasting feature. तो यहाँ पे बोला गया है these loans are needed, और ये लोन्स जरूरी होता है, needed by the small borrowers to bridge income shortfall। अब मिडिल क्लास पीपल का बात हो रहा है, स्मॉल बोरोवर्स का, जिसका इनकम कम रहता है, राइट। मोस्ट ऑफ द इनकम उनका एक्सपेंस में जाता है, कंजम्पशन में जाता है, तो क्या करते हैं, समवेयर दे टेक लोन्स टू ब्रिज द शॉर्टफॉल ऑफ इनकम। जो कम पड़ जाता है तो लोन्स लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट देना रहता है, एंड दे जस्ट, ये जो गैप रहता है एंटरटेनमेंट का या फिर अदर ट्रैवल, मेडिकल, दे जस्ट बियर इट, उसको बियर कर लेते हैं, यूज कर पाते हैं। सो द इंक्रीज इन द रिस्क वेट शुड देयरफॉर नॉट बिकम अ लास्टिंग फीचर। तो ये लास्टिंग फीचर नहीं होना चाहिए, राइट। इंक्रीज इन द रिस्क वेट में जो है अभी इंक्रीज किया जा रहा है, ये एक ऐसा, इट शुड नॉट बी अ लास्टिंग फीचर। ये ऐसा फीचर ना हो कि आप कंटिन्यू इसको इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, बिकॉज इट विल रियली अफेक्ट योर प्रॉफिट। जो बाद में क्या होगा, अगर कंटिन्यूसली आप इसको रेज करते जाएंगे तो बोरोवर्स जो हैं दे विल मूव समवेयर एल्स, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी कम हो, राइट। सो पार्टी एंड्स, इसका मतलब यही था, the heading was party end, okay। So this was the editorial, okay, I hope you have understood a little bit of it, okay। It was not very clear, but yeah, it was understood, it was really good to read. So I hope you have enjoyed. We'll meet you in the next session. Till then, keep smiling and take care. See you.